Alright, everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to particularly revise what we learned in our previous class. So, we learned about mitochondria, which we call it as a powerhouse of cell, but that's what the title says, right? Mitochondria does more work than being a powerhouse of the cell. Like, it is the powerhouse, but its main purpose and its main work is actually to break oxygen in the presence of its main function is to break glucose in the presence of oxygen. That's respiration, and that's ATP is produced. So that's like its main work. Then we learned about ribosomes. Ribosomes are actually protein factory, and we learned about the size of the ribosomes in human, and like human specifically as 80s, and bacteria we get 70s. So that was that we learned in our last class. Today in our class we're gonna specifically focus on our um third and a last kind of cell organelle that we had to talk about. So we're gonna talk about vacuoles in total, right? So what are vacuoles? So vacuoles are like its literal meaning that you should know is more like literal meaning is sac. ठीक है. If you call a sac is what a vacuole. ठीक है. And it is something that is present in both. Like the main two cells that we're studying is like plant and animal, present in both plant and animal. ठीक है. They're both present in plant and animal that we should know about. ठीक है. But these both vacuoles in plant and अगर हम plant की बात करें and we talk about animal cell vacuole, ठीक है, तो उन दोनों का difference है. Like if we talk about this is animal, sorry this is a plant cell, ठीक है. If we talk about this plant cell has this vacuole, has this type of vacuole kind of thing, has this certain vacuole. And this is an animal cell, and it has this big nucleus, and this side may like here, like these vacuoles right here, and this is nucleus of the plant cell. If you actually determine, or if you distinguish between what is happening in what is the difference between these two cells, is more like this has a big sap and this has small. ठीक है. इनके पास न्यूक्लियस जो है वो साइड में, इनका न्यूक्लियस बीच में. सो देयर आर डिफरेंस between both of these cells. First we'll discuss the animal cell. ठीक है. We'll discuss what animal cell is like, cell, and particularly its vacuole. ठीक है. So particularly its vacuole. Let's just get into it. सबसे पहले just focus on this diagram. It says it's small vacuoles, and you should know the placement. That is a nucleus. ठीक है. सबसे पहले what you can see that it has numerous vacuoles. Like this is also vacuole. So the first point that we should know is that an animal cell has numerous vacuoles. ठीक है. इनके पास numerous amount के होते हैं. Second thing that you see is like they're small sized. ठीक है. इनके छोटी size होती हैं, while plant cell has a big one. उसके बाद यू शुड नो दैट एनिमल सेल के अंदर हमें वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट दे आर एक्चुअली टेम्परेरी होते हैं. दे आर प्रेजेंट व्हेन इट इज़ नीडेड. ठीक है. इफ़ नीडेड होते हैं दे आर देयर, इफ़ नॉट नीडेड दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड व्हाट आर देयर जॉब्स. ठीक है. टेम्परेरी होते हैं नेचर. अब बाय लाइक अगर वो टेम्परेरी हैं, उनका यूज़ क्या है, लाइक व्हाट इज़ देयर यूज़, वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ. सबसे पहले हमारे पास नंबर वन थिंग, they're used to store excess food. For example, हमारे पास एक ऑर्गेनल है, या एक हमारे पास ATP जनरेट हो गया और हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा बन गया, तो हमारे पास इन वैक्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है. फूड वैक्यूल्स कहलाते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग जो होता है, दे आर एक्चुअली यूज्ड टू स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है. मेटाबॉलिक वेस्ट, ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है. बिकॉज वो काम तो आता नहीं है. एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को मोस्टली एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स बुलाते हैं.
ठीक है। जैसे एक्सेस फूड जस्ट लाइक व्हेन यू आर हंग्री, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो खाना स्टोर करती है, हमें पता है। जब हम हंग्री होते हैं और हमें कुछ खाना नहीं होता तो हमारी जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो यूज़ होते हैं। उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मेटाबॉलिक वेस्ट वैक्यूल्स के लिए, ये क्या करते हैं, ये स्लोली मूव करते हैं आउट ऑफ दिस सेल, ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन टू ब्लड एंड फिर हमारी किडनी के अंदर जाते हैं, ठीक है। हमें पता है ना एक पूरा प्रोसेस है कि भाई हमारा फॉर एग्जांपल ये सेल है, दिस इज़ आवर सेल, ठीक है। हमारे पास ये वैक्यूल जो ये इसके थ्रू स्लोली जाएगा एंड हमारे पास ब्लड के अंदर फ्लो करेगा, ये किडनी के अंदर जाएगा, किडनी इसको फिल्टर करेगी, ठीक है। फिल्टर करते ही ये थ्रो यूरिन या फीसेस हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। सो दैट्स हाउ एनिमल सेल का वैक्यूल, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू शुड नो अबाउट how animal cell vacuole is and what its function. It's numerous, they're numerous in amount, ठीक है। They're small size, they're temporary, they're used when needed, stored to excess food and metabolic waste, ठीक है। So there's in total इनका यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए। The next thing that we have to discuss is the plant vacuole. For plant vacuole, see अब इनको ना ये जो इनके पास एक बड़ा सा vacuole होता है and that is called cell sap, ठीक है। It is called cell sap because it is big, ठीक है। And this cell sap has what? It has water, ठीक है, plus it has mineral ions, ठीक है, plus it has excess food. Excess food क्या होता है हमारे पास, मतलब जैसे कि हमारे पास बाकी ये वाला वैक्यूल क्या काम कर रहा था, इट वॉज ऑल्सो वर्किंग टू स्टोर फूड, सो इट इज़ ऑल्सो वर्किंग टू, पर इसके अंदर मिनरल आयंस एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब लेट्स जस्ट डिस्कस इसके पॉइंट्स। देखो ये लार्ज साइज होता है, ठीक है, और यू कैन से दिस इज सेंट्रली हमारे पास क्या है वो प्रेजेंट है, इट्स एक्चुअली सेंट्रली प्रेजेंट वैक्यूल, इट इज़ सिंगल, ठीक है, एक ही होता है। The second thing that we should know is like they store large amount of sap, ठीक है, स्टोर करता है sap, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मिनरल आयंस होते हैं, वाटर होता है, एक्सेस फूड होता है। एंड ये जो sap होता है ना, दे एक्चुअली प्रोवाइड अ काइंड ऑफ प्रेशर दैट इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सारा वाटरी सब्सटेंस है इसके अंदर, ठीक है, एंड दिस वाटरी सब्सटेंस हैज मिनरल आयंस, दिस हैज एक्सेस फूड, एंड हम बोल सकते हैं कि मेजर क्वान्टिटी ऑफ वाटर होता है बिकॉज इट इज़ अ प्लांट सेल। इसके बाद बार बार वाटर आ रहा होगा, इन क्यों वाटर आ रहा होगा, बिकॉज प्लांट को हम पानी देते रहते हैं। अब बिकॉज जब अगर पानी किसी भी प्लांट के अंदर कुछ ज़्यादा ही आ जाता है तो इसके चांसेस हो जाते हैं बर्स्ट होने के, दैट्स व्हाई प्लांट हैज़ अ सेल वॉल, ताकि वो बर्स्ट ना हो। एंड उसके अंदर एक वैक्यूल के अंदर टर्गर प्रेशर होता है बिकॉज पानी स्टोर यहाँ हो रहा है ना। तो क्या होता है हमारे पास ये जो सेल होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एक टर्गर प्रेशर, लाइक हमारे पास जो एक अगर आपने देखा होगा एक शॉपर जब बहुत हवा बढ़ जाती है तो वो टाइट हो जाता है, तो वो टाइट हो जाता है तो उसके पास एक टर्जिड बन जाता है वो, ठीक है। तो ये टर्जिड बन जाता है, टर्गर प्रेशर एक प्रेशर प्रोवाइड करता है जिससे ये बर्स्ट नहीं होता, ठीक है। तो इट एक्चुअली हेल्प्स टू डू व्हाट, हेल्प्स टू मेंटेन, so this is like main use, its shape and prevent collapse, ठीक है। ठीक है, एंड इट इज़ लाइक अ वैक्यूल, इतना बड़ा खुद है, ठीक है, ये वैक्यूल बहुत बड़ा है, तो इसके पास खुद की एक मेम्ब्रेन होती है विच इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो पेपर में बार पूछी जाती है, दैट यू शुड नो अबाउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड मेन, और यू कैन से द similar cell organelle that we had to study about in a plant and animal, which is vacuole. It means a sac. It's present in both plant का बड़ा होता है, animal का छोटा होता है, इसके बाद बहुत सारे होते हैं पर टेम्परेरी होता है, इसके बाद एक होता है, ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, टर्गर प्रेशर, सेल का शेप मेंटेन करता है। ये हमारे पास दो काम है, एक तो स्मॉल साइज, भाई ये टेम्परेरी होते हैं, स्टोर करते हैं खाना, या इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। सो दैट वाज फॉर टुडे। I hope you like my video. This is the max information that you should know, if you're studying IGCSE, if you're studying O levels, about these things for this topic, for this chapter particularly. As you'll move ahead, you'll probably get more things when we study plant biology in detail. Thank you so much for watching. I hope it helped.